Standard 3rd SS Day 4. This is the book cover, Purse 3, Semester 2. Take out the page number 214 of your textbook. There is the lesson number 2, The Splendid South. Children, do you know the meaning of splendid? Splendid means very excellent. That is an adjective of excellent or very good. In this lesson, we will see about the cities of South. They are Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Thiruvananthapuram and Visakhapatnam. In our last lesson, you have learned about few cities of East. Do you remember the cities, children? Let me ask you some question regarding the last lesson. Where is Howrah Bridge located? Howrah Bridge कहाँ है? Yes, it's in Kolkata. What is the local name of Ahmedabad? Answer is Ahmedabad. Local people say Ahmedabad. In which city will you find the Hawa Mahal? Yes, it's a Jaipur. Which city is called the city of temples? Answer is Bhubaneswar. In which city the Hindi film industry located? हिंदी मूवी की इंडस्ट्री कहाँ पे बच्चों? इट्स इन मुंबई. वेरी गुड. लिट्टी चोखा इज पॉपुलर स्नैक ऑफ विच स्टेट? बिहार. इन विच स्टेट इज द फेमस दाल लेक? जम्मू एंड कश्मीर. विच फेस्टिवल शोकेस द कल्चर ऑफ नागालैंड एंड इज सेलिब्रेटेड इन डिसम्बर? हॉर्नबिल फेस्टिवल. विद दैट, let's begin the lesson. Children, have you eaten idli sambar, dosa? All will see in this lesson if you have not eaten so far. Chapter number 2, Splendid South. Get started. Fill in the missing letter to complete the names of this southern state. अभी आपको southern states के कौन से नाम दिए गए मिसिंग लेटर में फॉर्म में. यू हैव टू राइट इट की -R-A. दैट इज कर्नाटका. KARNATAKA कर्नाटका. It's here, children. You can copy the answer from here. In the blanks, whatever the missing letters are there, that you have to write, and which letters are given, that you just skip it. Second one, Telangana. Third one, Andhra Pradesh. Fourth one, Tamil Nadu. Fifth one, Kerala. Is it clear? Write the states of South in the blanks. Come to the lesson. In this lesson, we will read about some cities in South India. See map 2.1 and locate these cities. इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? साउथ के कुछ सिटियों के बारे में. Not all the cities, few cities of the South India that we will see in the map 2.1. And the very next page of the 214, 215 is there, no? There is a map is given. You can see in this map, children. Let me zoom for you. Karnataka, Hyderabad, that is Telangana, Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Chennai, Tamil Nadu, the capital of Chennai. Tamil Nadu's capital is Chennai. Kerala, Thiruvananthapuram. And what is the capital of Karnataka, children? Bengaluru. And Goa. Goa is a union territory. Rest are the states, children.
Is it clear? So which cities we are going to learn in this lesson? The city of Tamil Nadu, Chennai, the city of Andhra Pradesh, Visakhapatnam, the city of Telangana, Hyderabad, the city of Karnataka, Bangalore, the city of Kerala, Thiruvananthapuram, and Goa. All these cities are the capital of the states. Let's see Chennai first. Chennai is the capital of Tamil Nadu. चेन्नई किसकी कैपिटल है बच्चों? तमिलनाडु का कैपिटल है. It was earlier called मद्रास. इसका पुराना नाम मद्रास है. Chennai is located on the southeast coast of India, facing the Bay of Bengal. अभी चेन्नई कौन से साइड है? साउथ ईस्ट साइड इंडिया के, जो बे ऑफ बंगाल से सटी हुई है, लगी हुई है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट. अभी ये एक बड़ा बंदरगाह है, क्योंकि इसके आगे जाओगे तो आपको समुद्र मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा. तो यहाँ पे सारे शिप्स जो बाहर के देशों से आते हैं सामान लेकर, वो यहाँ पर रुकते हैं. और ऐसी प्लेस को हम क्या बोलेंगे? वी विल सी port. So Chennai is an important port. Let's see the climate of Chennai. Chennai is warm throughout the year. The city gets pleasant sea breeze. Chennai receives more rain in winter than in summer. Chennai का climate कैसा है? Warm है, पूरे साल warm रहता है. Why Chennai is warm? Because Chennai is a coastal region and the climate of coastal is always moderate, neither too cold neither too hot, and it's a moderate and warm. Why it's warm? Because the humidity is more. The winds carry the humid air from the sea, and just because of this Chennai is warm. The city gets a pleasant sea breeze. sea की तरफ से हवा जो आती है वो ठंडी हवा आती है, और गर्म हवा लैंड पे से सी की तरफ चली जाती है. तो सी बड़ा है वहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा आती है, इसलिए वहाँ ठंडी हवा का एहसास होता है, और इससे हमको खुशी जैसा प्लेजेंट फील होता है. गर्मी लगने लगती तो हम कैसे इरिटेट हो जाते हैं. वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, बट इफ़ यू गेट अ कोल्ड ब्रीज इन दैट हॉटनेस वी विल फील गुड. दैट इज़ प्लेजेंट क्लाइमेट. ओके. चेन्नई रिसीव मोर रेन इन विंटर दैन इन समर. अभी विंटर में यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ना कि समर में, क्योंकि जो साउथ ईस्ट विंड्स रहती है वो ब्लो होती है और चेन्नई को बारिश देती है विंटर में. यहाँ पे आपको बीच दिख रहा है. दिस इज़ मरीना बीच. इज़ द मोस्ट पॉपुलर बीच इन चेन्नई. कौन सी बीच चेन्नई की पॉपुलर है बच्चों? मरीना बीच. Go to the next page, 215. Food and clothes. यहाँ का खाना, यहाँ के कपड़े किस तरीके के होते हैं देखते हैं. राइस इज़ द मेन फूड. यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए प्रोडक्शन ऑफ राइस इज़ मोर. Cultivation of rice is more because rice needs lots of water, and that water and type of land is available in Chennai. It is eaten with सांभर, रसम and curd. अभी जो चेन्नई वाले पीपल रहते हैं, मद्रासी लोग ज़्यादा करके राइस को सांभर के साथ खाते हैं, रसम के साथ में खाते हैं और कर्ड के साथ में खाते हैं. उनके कोई भी आप फीस्ट में जाओगे तो आपको ये सांभर, रसम, कर्ड और एट लास्ट दे विल गिव यू घी, clarified butter to eat with the rice. Idli, dosa, vada, appam and uttapam are popular snacks. अभी ये जो इनके जो नाश्ते रहते हैं वो इडली रहता है, डोसा रहता है, वड़ा, मेंदू वड़ा रहता है, अप्पम रहता है. अप्पम इज़ अ काइंड ऑफ डम्पलिंग मेड बाय द fermented rice and lentils. Uttapa is a thick dosa, just like our others pizza, other snacks. People speak Tamil and English. People कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल बोलते हैं. तमिल और इंग्लिश भी बोलते हैं. People wear both modern and traditional clothes.
यहाँ के लोग मॉडर्न कपड़े भी पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट भी पहनते हैं, एंड ट्रेडिशनल मतलब लुंगी और जो उनकी रहती है लुंगी वो भी पहनते हैं। मैन वेयर वेस्टी, धोती एंड शर्ट। आदमी लोग क्या, मैन लोग क्या पहनते हैं, वेस्टी, और उसको धोती बोलते हैं। व्हाट इज स्ट्रेट धोती होती है उनकी, वाई नीचे एक बॉर्डर रहती है, तो उसे हम बोलते हैं वेस्टी एंड शर्ट। दे ऑल्सो वेयर ट्राउजर्स, और जो लोग वेस्टी नहीं पहनते हैं वो लोग ट्राउजर्स पहनते। ट्राउजर्स मतलब पैंट। वुमेन वेयर साड़ीज, और औरतें साड़ीज पहनती हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल गर्ल्स वेयर पवाड़ी विच इज़ अ लॉन्ग स्कर्ट, और यहाँ की जो लड़कियां हैं वो पावाड़ी नाम का ड्रेस पहनती हैं, लॉन्ग स्कर्ट, मोस्टली सिल्क क्लोथ से बनाया रहता है, ग्रीन रहता है। महाराष्ट्रियन वेयर्स ग्रीन एंड द साउथ इंडियन वेयर्स द डिफरेंट कलर्स, दैट इज पावाड़ी, दैट मोस्टली वोर बाय द गर्ल्स, छोटी लड़कियां पहनती हैं इसको। पीपल यूजुअली वेयर कॉटन क्लोथ्स थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ के लोग कॉटन क्लोथ ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट वार्म है इसलिए। फेस्टिवल एंड डांस, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और कौन सा नृत्य नाचा जाता है। लेट्स सी, ऑल द मेन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर। जितने भी मेन फेस्टिवल्स है, होली, दिवाली, मकर संक्रांति एंड ऑल आर सेलिब्रेटेड हियर। नॉट इवन द हिंदू फेस्टिवल, इवन द Christians festival like Christmas and other festivals also celebrated here. पोंगल, a harvest festival is celebrated in January, और इनका न्यू ईयर जनवरी में स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे एक पोंगल नाम का फेस्टिवल आता है और दैट इज़ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। यहाँ पे अनाज कटता है, उस अनाज कटने की खुशी में फर्स्ट राइस को वो लोग यूज़ करते हैं जो कट के आया है, और इसको हम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बोलते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। तो ये फर्स्ट राइस से जो भी रहता है उसमें से मीठा राइस बनाते हैं, एंड दे बिगिन द न्यू ईयर बाय पोंगल। पोंगल एक राइस भी है, स्वीट राइस है, पोंगल फेस्टिवल भी है। भरतनाट्यम इज फेमस डांस ऑफ तमिलनाडु। भरतनाट्यम फेमस डांस है, डांस फॉर्म है तमिलनाडु का। चेन्नई इज फेमस फॉर म्यूजिक, आर्ट एंड वीविंग। चेन्नई किसके लिए फेमस है, म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, कला के लिए, और वीविंग मतलब बुनाई के लिए। कपड़े यहाँ की रेशम की सिल्क साड़ियाँ बहुत फेमस है। दिस वुमेन इज डांसिंग द भरतनाट्यम। Let's see the industries of Chennai. Railway coaches, cars and trucks are made in Chennai. चेन्नई में क्या बनते हैं, रेलवे कोचेस मतलब रेल के डिब्बे बनते हैं, कार्स एंड ट्रक्स, कार बनते हैं, ट्रक्स बनते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज फिल्म इंडस्ट्री, और यहाँ पे बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स आर मेड हियर एवरी ईयर, और हंड्रेड्स के तादाद में यहाँ पे मूवी बनती है। चेन्नई हैज़ मैनी मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो रेल सर्विसेज इज़ वन ऑफ देम। चेन्नई के पास अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रेल है, रोड है, वाटरवेज है, एयरवेज है। तो यहाँ पे मेट्रो रेल है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन है। So apart from these four, metro is also run in Chennai. Is it clear? Tourist attraction. अभी टूरिस्ट जाते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ पे? चेन्नई इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर। चेन्नई क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर है। टूरिस्ट मतलब पर्यटकों का केंद्र है, देखने लायक यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द सिटी इज़ इट्स बीचेस, और मेन अट्रैक्शन क्या है, वहाँ के बीच। बीच मतलब दरिया किनारा जो रहता है वो वहाँ का बहुत अच्छा है। द मरीना बीच एंड एडवर्ड एलॉज बीच, अदर प्लेसेस पॉपुलर विद टूरिस्ट आर द वॉर मेमोरियल, गांधी मंडपम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, गवर्नमेंट म्यूजियम, Gundi Snake Park and Kapaleshwar Temple.
अभी यहाँ पे मरीना बीच है, एडवर्ड एलॉयड्स बीच है, और दूसरे कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं? वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल मतलब जो लोग मर गए हैं वॉर में उनको याद करने के लिए यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ा सा पिलर बनाया गया है और उसको डेकोरेट किया है काफ़ी, मीन्स वहाँ पे टूरिस्ट घूम सकते हैं और हमारे जो भी सैनिक मर गए हैं वॉर में शहीद हुए हैं उनके लिए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। गांधी मंडपम, फोर्ट सेंट जॉर्ज का फोर्ट है, फोर्ट मतलब किला। गवर्नमेंट म्यूज़ियम, म्यूज़ियम का नाम गवर्नमेंट बना दिया है तो गवर्नमेंट म्यूज़ियम कर दिया है। एंड गुएंडी स्नेक पार्क, ये कुछ इंटरेस्टिंग स्नेक पार्क है, जैसे वो प्लांट्स रहते हैं पार्क में, यहाँ पे इस पार्क में स्नेक का वैरायटीज़ है, मैनी वैरायटीज़ ऑफ स्नेक्स आर kept in this park. This name is Guendi Park, Snake Park. Kapaleshwar Temple. This temple is famous for its stone carving like other cities. Chennai also has many malls. कपालेश्वर टेम्पल फेमस है किसके लिए? क्योंकि उसको स्टोन कार्विंग करके बनाया, एक सिंगल स्टोन में से पूरी मंदिर को बनाया गया है और स्टोन को पत्थर से उसका कारीगरी किया गया है। जैसे अदर सिटीज़ में मॉल्स रहते हैं वैसे चेन्नई में भी बड़े बड़े मॉल्स हैं। टर्न द पेज। This is a very famous park of Bengaluru, that is Lal Bagh, and here the flower shows are done. Variety of flowers are kept in this garden, and this is the IT company. Let's see Bengaluru. बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु किसका कैपिटल है? कर्नाटका का कैपिटल है। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड बैंगलोर, उसका पहला नाम क्या था? पुराना नाम था बैंगलोर। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज गार्डन सिटी, और इसको हम बोलते हैं गार्डन सिटी, जैसे कि हम जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, वैसे बेंगलोर को बोलते हैं गार्डन सिटी। मोस्ट पीपल स्पीक कन्नड़, यहाँ की भाषा कौन सी है? लोग ज़्यादा कन्नड़ भाषा यूज़ करते हैं। मेट्रो इज़ अ पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चालू हो गया है। मेट्रो यहाँ पर भी है, मेट्रो चेन्नई में भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बेंगलुरु हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। बेंगलुरु में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज़ बनाने वाली, टेक्सटाइल्स कपड़े बनाने वाली, केमिकल मतलब रसायन बनाने वाली, एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब जो कंप्यूटर मोबाइल्स रहते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रहते हैं, ये सब बनाने वाली फैक्ट्रीज बेंगलुरु में है। मैनी कंप्यूटर कंपनीज हैव देयर ऑफिसेस हियर, और आईटी यहाँ पे बहुत अच्छा से डेवलप हुआ है और बड़े बड़े LNT है, दूसरे जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी वो कंपनी सारी कंप्यूटर्स की मोस्टली यहाँ पे है आईटी सेक्टर में। बेंगलुरु इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर फैक्ट्रीज आ गई हैं, बहुत लोग को कंप्यूटर रिलेटेड जॉब मिल गया, आईटी वेरी फ्लरिश्ड है, आईटी को जो भी रिक्वायरमेंट है सब मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। Some places of tourist interest are Lal Bagh, Tipu Sultan's Palace, Government Museum and Aerospace Museum। अभी यहाँ पे देखने लायक क्या क्या चीज़ है? लाल बाग है, टीपू सुल्तान का महल है, गवर्नमेंट का म्यूज़ियम है और एयरस्पेस म्यूज़ियम है। एयरस्पेस मतलब यहाँ पे पुराने नए जितने भी एयरक्राफ्ट लॉन्च हुए हैं या फिर जो भी बचे हुए हैं उनके मॉडल्स हैं, और कैसे एयरप्लेन को का जो एनाटॉमी रहता है कैसे रहता है वो सब बताया जाता है यहाँ पर। Vidhan Soda is a famous landmark in the city.
Fact wise, the Charminar was built to make the end of plague in Hyderabad. It was completed in 1592. 1592 के पहले हैदराबाद में प्लेग फैल गया था, तो वहाँ के राजा को लगा कि चारमीनार बनाया जाए तो शायद प्लेग ख़त्म हो जाए, तो इन्होंने चारमीनार बनाया और इस तरीके से चारमीनार हैदराबाद में आया है, बना हुआ है। Next is Hyderabad. Hyderabad is the capital of two states, Telangana and Andhra Pradesh. अभी हैदराबाद ट्विन कैपिटल है, एक तेलंगाना का भी है एंड आंध्र प्रदेश का भी है। इट इज़ ऑल्सो नोन द सिटी ऑफ पर्ल्स, और इसे हम सिटी ऑफ पर्ल्स भी बोले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पर्ल्स आर्टिफिशियल पर्ल्स का खेती करते हैं, पर्ल कल्चरिंग बोलते हैं उसको। तो पर्ल कल्चर्स करते हैं, इसकी वजह से हमको मीन्स नेचुरल जो पर्ल्स रहते हैं वो दे आर वेरी लिमिटेड एंड यू कैन मेक more artificial pearl culture in the form of oyster, and in this way you can get more and more pearl. तो यहाँ पे पर्ल सिटी इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे पर्ल कल्चर होता है और हमको बहुत सारे पर्ल्स मिलते हैं। सिकंदराबाद इज़ लोकेटेड क्लोज टू हैदराबाद, और सिकंदराबाद जो है वो हैदराबाद के बाजू में है। These two cities connected by the Hussaini Sagar Lake are known as the twin city. अभी ये सिकंदराबाद और हैदराबाद को कौन कनेक्ट करता है? हुसैनी सागर लेक, और इसलिए उसे ट्विन सिटी कहा जाता है। चारमीनार इज़ द प्राइड ऑफ द सिटी। चारमीनार यहाँ का गर्व है, सिटी का गर्व है। क्यों? क्योंकि उसकी सिटी की शोभा बढ़ाता है। Other places that tourists like to visit are Salarjung Museum, Golconda Fort and Komala Place. Here your session ends. Today we have seen page number 214, 15 and 16. Read the text again and understand the content. Thank you, children.